class. Good morning to everyone. So our today class is start. So we start a new topic, that is diversion hate work. Diversion hate work. So where we can construct diversion hate work? So the work which are constructed at head of the canal. Where is construct? Head of the canal. So this is our head. This is the canal. Okay. Here is the head. So at the upper stream and at the head of the canal, we construct diversion head work. Okay. So what is the work? Why we construct diversion head work? So diversion head work is used to divert the river water towards the canal. Here any river is flow. Here any river is flow, and this river water flow to here. So here is the diversion work. Diversion work construct to ensure regulate free continuous supply at water which with a certain minimum head into the canal are termed as diversion head work. Diversion head work हम लोग कहाँ पे बनाते हैं? At the head of the canal. Okay. Why we construct for the continuous supply water into the canal from the river in a particular head, है ना? कंटिन्यूअस सप्लाई हम लोग वाटर करते हैं इन सर्टेन मिनिमम हेड, ताकि हमारा जो इरिगेशन पर्पस हो वो सॉल्व आउट हो सके. ठीक है. किस टाइप का डाइवर्शन हेड हो सकता है? आइदर वेयर आइदर वेराज. ओके. आइदर वेयर आइदर वेराज. So what is the difference between where and whereas? Difference between where and whereas? So what is the where? Where and whereas? Okay. Difference between where and whereas. क्या डिफरेंस होता है? तो वेयर हम लोग कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं? वेयर में हमारा किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है? वेयर इज अ क्रेस्ट, है ना? रेज्ड क्रेस्ट होता है. वेयर इज अ रेज्ड क्रेस्ट, कुछ इस तरह से. दिस इज द वेयर
okay, raised crest होता है, okay, and whereas has raised crest but with gates, है ना, it has also raised crest with gate. whereas में क्या होता है, एक गेट लगा रहता है, मतलब ये गेट के थ्रू क्या होगा, वाटर है जो फ्लो करेगा, एक ओपनिंग रहता है इसमें। एंड क्रेस्ट में क्या होता है, ओवर द फ्लो होता है, इधर से अगर वाटर आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओवर द फ्लो। बट फ्रॉम वेराज ये गेट हमारा ओपन हो जाएगा और इधर से वाटर फ्लो करेगा, नॉट ओपन द कंस्ट्रक्शन। दिस इज द डिफरेंस वेयर कैन नॉट बी यूज्ड एज मीन एज फ्रॉम पोर्शन, okay, and whereas can be used mean of the transportation transportation costly but effective control is provided। where है जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज नहीं किया जाता है, बट whereas है जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस इज द ओवर द फ्लो हो जाता है वेयर में, एंड whereas वाटर फ्लो थ्रू द गेट। एंड व्हाट इज द डाइवर्शन वर्क, what is the diversion work and component of diversion work? So let's see diversion work. And its component. Okay. So diversion work are generally consist of following component: total construction or total work which is constructed at the head of the canal for the purpose of flowing continuous supply of water for a minimum head is known as diversion work. And its component is, the first component is where or whereas, either whereas कुछ भी हो सकता है, so we can write where, okay. First is the where proper. Second is the undersleeves. Second is the undersleeves. Okay. Third is the divide wall. Fourth is the river training work. Fifth is the fish ladder. And sixth is the canal head regulation. And last is the seventh, that is silt regulator. So these are the different component of diversion head work. तो वन बाय वन हमें हर एक कंपोनेंट के बारे में जानना है कि उसका क्या यूज है एंड कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ओके, फर्स्ट इज द वेयर. सो व्हाट इज द यूज ऑफ वेयर? वेयर इज अ raised crest. It is the raised permanent, or we can say pakka, a structure with or without shutter or gate.
वेयर में हमारा क्या होता है, क्रेस्ट को हम लोग रेज करते हैं, बट इसमें किसी भी तरह का कोई गेट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, अक्रॉस द रिवर, है ना, अक्रॉस द रिवर विड्थ। एंड व्हाट इज द पर्पस, पर्पस इज द डाइवर्ट वाटर इनटू द कैनाल, ठीक है। रिवर वाटर को कहाँ पे डाइवर्ट कर रहा है, इनटू द कैनाल। ओके, दिस इज द वेयर how we construct. So a line diagram of where is like that. This is the base point. This is the base point. Here is the bear crest. This is the wear wall. This is the wear wall, and crest is the this one. This is the crest. Okay, this is the wear wall, and this one is the crest. We can write here. This is the wear wall. This is the crest. And this is the crest level. This level is the called crest level. Here is the upstream cutoff. Here is the downstream cutoff. Cutoff we have already studied in river training work, है ना। तो डाइवर्शन वर्क का जो मेजर पोर्शन है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कहाँ पढ़ा हुआ, रिवर ट्रेनिंग वर्क में। रिवर ट्रेनिंग वर्क जो हम लोग करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं फॉर द आइदर वाटर सप्लाई, आइदर वाटर कंट्रोल, है ना। वाटर कंट्रोल के लिए आइदर इरोजन, है ना। तो ये डिफरेंट कंडीशन के लिए हम लोग डिफरेंट कंस्ट्रक्शन अलाउ करते हैं इन रिवर, और सम रिवर ट्रेनिंग वर्क भी हम लोग करते हैं। तो मेजर पोर्शन ऑफ डाइवर्शन वर्क इज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन रिवर ट्रेनिंग वर्क. So this is the line diagram of crest where proper. Okay, so next portion is the next component is the understitch. So first हम लोग क्या करते हैं कि फुल डाइवर्शन वर्क का हमें क्या जानना है, लाइन डायग्राम. So this is the layout or diversion head work and its component. So here is the upstream river. From here water is entered. This is the upstream side, है ना. कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, एट द हेड ऑफ द कैनाल, okay. This is the guide bank. What is the purpose? In river training chapter we have already studied about guide bank. क्या करता है, वाटर फ्लोइंग का जो विड्थ होता है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है. दिस इज द गाइड बैंक इन बोथ साइड अक्रॉस द कैनाल. This is the cross regulation work. Okay. Here is the divide wall. Here is the fish ladder. What is the fish ladder? We have a study after this. This is the fish ladder. This is the underswitch portion of weir.
Okay, this is the under sluice portion of weir. This is the weir proper. अभी हमने जो कंस्ट्रक्ट किया that is this portion. Weir proper, either we can say main weir, either we can say normal weir portion. है ना, ये हमारा क्या है, weir proper. This one is weir proper. This one is weir proper, and this one is the under sluice portion. This is the front view. ये हमारा कैसा है, फ्रंट व्यू का लाइन डायग्राम में प्लान, वी कैन से प्लान ऑफ डाइवर्शन हेडवर्क. ठीक है, एंड दिस वन इज आल्सो, दिस इज आल्सो गाइड बैंक इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द मार्जिनल embankment also river training portion. This is the marginal embankment. ठीक है, this is the upstream side and this is the downstream side. This is the these are the proper line diagram of diversion headwork. ठीक है, तो वेयर हमने पढ़ा, वेयर प्रॉपर के बारे में पढ़ा, मतलब दिस पोर्शन के बारे में हमने कंप्लीट किया. आल्सो लाइन डायग्राम इज सीन हियर. सो नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज द अंडर स्लीव्स पोर्शन. दिस वन अंडर स्लीव्स पोर्शन. सो अंडर स्लीव्स पोर्शन क्या है, अंडर स्लीव्स पोर्शन और वी कैन से स्करिंग स्लीव्स. Under sluice portion or we can say a scoring sluice. So a compulsory less turbulent of water is created near the canal head regulator by constructing under sluice portion at the weir. Okay, so a divide wall separate the main weir portion and under sluice portion. This divide wall, what is the purpose of divide wall? Divide wall हमारा क्या कर रहा है, divide wall हमारा under sluice weir and मेन वेयर पोर्शन को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है. ठीक है, द क्रेस्ट एट द अंडर स्लीव्स पोर्शन ऑफ द वेयर इज केप्ट एट लोअर देन द क्रेस्ट ऑफ नॉर्मल पोर्शन ऑफ द वेयर. अंडर स्लीव्स का जो हाइट है, जो पोर्शन है, उसे हम लोग क्या करते हैं, उसके जो क्रेस्ट को लेस देन द मेन वेयर है ना, मेन वेयर से उसका क्रेस्ट थोड़ा लेस रखते हैं ताकि जो हमारा वाटर इधर से फ्लो हो रहा है वो फ्लो करके वेयर को क्रॉस करते हुए हमारे कैनाल में इंटर कर सके. Normally the crest level of the undersluice is kept equal to the deepest wet level at the river during non-monsoon season. non-monsoon season में कितना रखते हैं, नॉर्मली जो क्रेस्ट का लेवल है अंडरस्लीव्स लेवल का जो क्रेस्ट लेवल है उसका हाइट कितना रखते हैं, दैट इज इक्वल टू deepest wet level of the river during non-monsoon season. non-monsoon season मतलब जो बारिश का सीजन नहीं है, उस समय जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर बच जाता है, मिनिमम डेप्थ ऑफ वाटर, उस हाइट के वाटर की इक्वल हम लोग अंडर स्लीव्स का हाइट रखते हैं, अंडर स्लीव्स का क्रेस्ट का हाइट रखते हैं. ठीक है, सो जनरली कितना होता है, दैट इज 1 to 1.5 मीटर, दैट इज 1.5 मीटर. The crest level of head regulator is also kept higher than the crest level of undersleeves. जो हमारा head regulator जो यहाँ पे बना हुआ है, जो हमारा यहाँ पे head regulator है, इस head regulator का भी हम लोग क्या करते हैं, head regulator का भी जो height है वो कितना रखते हैं, height of head regulator higher than crest level of undersleeves, higher than crest level of undersleeves, so that क्या हो जाता है, इससे only silt free water is admitted into the canal. ये पोर्शन हायर रखने से क्या होगा, सिल्ट हमारा वाटर के साथ फ्लो नहीं कर पाएगा, है ना, सिल्ट फ्री वाटर हमारे कैनाल में इंटर करेगा. तो दिस इज द पर्पस, हमारा हाइट इंक्रीज करने का क्या पर्पस है, ताकि सिल्ट इंटर ना कर पाए कैनाल में. ठीक है, ओके. सो
understrees or we can say skirting streets. तो this is the difference. किस तरह से होगा? दिस इज द पोर्शन ऑफ अंडरस्ट्रीज, है ना. अंडरस्ट्रीज का हाइट कितना रखते हैं? बिलो द क्रेस्ट, बिलो द वेयर, मेन वेयर. डिवाइड वॉल, डिवाइड वॉल इज सेपरेट wall between understrees and main wear. So next component is the divide wall. ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट इज द डिवाइड वॉल. दिस पोर्शन इज द डिवाइड वॉल. अब इसका क्या यूज है? व्हाई वी कंस्ट्रक्ट डिवाइड वॉल? So divide wall is machinery or concrete wall constructed at right angle to the axis of wear and separate wear proper from undersleeves. Divide wall हमारा क्या करता है? अंडरस्लीव्स एंड वेयर प्रॉपर को सेपरेट करता है. कैसा होता है? कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं? इट इज ए मशीनरी और कंक्रीट वॉल होता है कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ वेयर एंड सेपरेट वेयर. ठीक है, राइट एंगल पे बना होता है टू द एक्सिस ऑफ वेयर. वेयर का जो एक्सिस है उसके राइट एंगल पे बना होता है. ठीक है. Extend on the upper stream beyond the beginning of canal head regulation. On the downstream side, it extends beyond the end of loose protection of undersleeves. मेन फंक्शन हमारा क्या होता है डिवाइड वॉल का? कि separate undersleeves from wear proper, and it helps in providing comparatively less turbulent pocket near the canal. कैनाल के नियर हमारा जो टर्बुलेंस है उसको लेस कर देता है. क्यों? क्योंकि ये हेड रेगुलेटर से जो वाटर इंटर करता है उसके बाद ये अंडरस्लीव्स पे जाता है, अंडरस्लीव्स से क्रॉस करता है. अंडरस्लीव्स का हाइट हमारा थोड़ा लेस है. उसके बाद हमारा क्या डिवाइड वॉल है. तो डिवाइड वॉल के पास क्या हो जाएगा? वाटर है जो अपना टर्बुलेंस थोड़ा लेस कर देगा, उसका स्पीड थोड़ा लेस हो जाएगा. उसके बाद ओवरफ्लो करके कहाँ पे जाएगा? ओवरफ्लो करके कहाँ पे जाएगा? वेयर प्रॉपर के थ्रू क्रॉस करके हमारे कैनाल में इंटर करेगा. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटरिंग एंड फ्लोइंग वाटर. ठीक है. तो सेपरेट वॉल दैट इज डिवाइड वॉल आल्सो कीप द क्रॉस करंट अवे फ्रॉम द वेयर. क्रॉस करंट जो भी हमारा रिवर से आ रहा है उसे क्या करता है? उसे मेरे वेयर को बचा के रखता है. ठीक है. तो नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द डाइवर्सन वर्क इज गाइड बैंक. नेक्स्ट पोर्शन इज गाइड बैंक. व्हाट इज द गाइड बैंक? गाइड बैंक क्या है? व्हाट इज द गाइड बैंक? रिवर ट्रेनिंग वर्क का कौन कौन सा पोर्शन हमें पढ़ना है? दैट इज गाइड बैंक, मार्जिनल बैंक एंड अदर्स, है ना. तो गाइड बैंक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. So we can draw a line diagram of guide bank. So guide bank we can also see at any bridge constructed over the river, है ना. वहां पे भी हमें गाइड बैंक देखने को मिलता है. वो हमारा क्या करता है? ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर देता है. This is the line diagram of guide bank. ये हमारा ब्रिज है. This is the bridge. This is the plan view. There is the flowing water below the bridge.
here we can construct okay. So guide bank is an engineering a structure such as where or whereas or bridge is constructed across a river. The river width is reduced and drained in such a way as to ensure not only safe disposal of flood water take place, but also ensure permanent width of waterway for the water flow. हमारा क्या कर देता है, जो वाटर width है उसको रिड्यूस कर देता है. ओके, रिवर इधर से आ रही है, रिवर इधर से आ रही है, अगर इधर यहाँ पे हमने कोई वॉल बना दिया, यहाँ पे हमने वॉल बना दिया, तो रिवर का जो वाटर है वो सिंपली हमारा कहाँ से फ्लो करेगा, ओनली दिस वे, ओनली दिस वे हमारा रिवर का वाटर फ्लो कर जाएगा, ये दीवार से, ये वॉल से इस साइड नहीं जाएगा. तो दिस इज द यूज ऑफ गाइड बैंक. गाइड बैंक हमारे रिवर का जो विड्थ है उसको रिड्यूस कर देता है. जो पानी का फ्लो आ रहा है वो स्प्रेड हो सकता है, बट उस स्प्रेडिंग को, उस फ्लो को गाइड बैंक क्या कर देता है, कंट्रोल कर लेता है. कहाँ पे यूज कर सकते हैं, वेयर, वेराज, ऑल्सो नियर द ब्रिज, जब ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते हैं वहां पे, एज वेल एज जब फ्लड आता है उस समय भी गाइड बैंक हमारा क्या करता है, फ्लड से भी हमें बचाता है. ठीक है, क्लियर है. गाइड बैंक, पर्पस ऑफ गाइड बैंक, ये हमारा क्या होता है, परमानेंट स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, परमानेंट स्ट्रक्चर होता है. सो गाइड बैंक का जो साइड का पोर्शन है वो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो स्लोपिंग फेस है वो स्टोन से पिचिंग किया जाता है. ठीक है, ये जो पोर्शन है इसे हम लोग क्या करते हैं, स्टोन से पिचिंग करते हैं ताकि इसका इरोजन ना हो सके. ठीक है, ताकि इसका इरोजन ना हो सके. साथ ही साथ ये स्लोपी एरिया के साथ साथ यहाँ पे एक लॉन्चिंग पैड भी होता है, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, स्टोन चिप्स के थ्रू पिचिंग किया जाता है. ठीक है, इस पोर्शन को भी स्टोन चिप्स के थ्रू पिचिंग किया जाता है. ओके, नेक्स्ट जो हमारा डाइवर्शन वर्क था, नेक्स्ट डाइवर्शन वर्क इज marginal embankment. So what is marginal embankment? मार्जिनल इम्बैक्टमेंट क्या है, मार्जिनल इम्बैक्टमेंट भी हमारा रिवर ट्रेनिंग का ही पोर्शन है. तो वेयर वी कैन यूज मार्जिनल इम्बैक्टमेंट, आल्सो वी कैन कंस्ट्रक्ट इन डाइवर्शन वर्क gyrones and spurs. So next is the marginal embankment. Next is the marginal embankment. So marginal embankment, or we can say levees. We can say levees. Okay, these are generally earthen embankment parallel to the river at some suitable distance from it. River के parallel हम लोग क्या करते हैं, embankment, earthen embankment construct करते हैं. That is the marginal embankment. ठीक है, constructed on both sides or only one side of river for the some suitable length when the river enter or passing through towns or village, है ना. This embankment wall retain the flood water and thus preventing it from spreading water into the town. वाटर इंटर करने से हमें क्या करता है, मार्जिनल इम्बैंकमेंट रोकता है, प्रिवेंट करता है. ठीक है, द अलाइनमेंट ऑफ दिस लीवेज फॉलो द नॉर्मल मेएंडरिंग पैटर्न टू द रिवर. जो जो हमारा फ्लो कर रहा है ना, रिवर का अगर फ्लो ऐसा है, रिवर का अगर फ्लो ऐसा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके साइड पे मार्जिनल इम्बैंकमेंट कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, अक्रॉस द पैरेलल टू द रिवर, पैरेलल टू द रिवर, पैरेलल टू द रिवर हम लोग क्या करते हैं, मार्जिनल इम्बैंकमेंट बना देते हैं, मतलब एक लीवेज बना देते हैं
along the length of the river, ताकि जो रिवर का वाटर है वो इसे क्रॉस ना कर पाए, इधर से इधर फ्लो ना हो जाए, इधर से इधर फ्लो ना हो जाए। ओके, अगर यहाँ पे मेरा सिटी है, यहाँ पे हमारा टाउन है, तो क्या हो जाएगा, अगर हमने एम्बैंकमेंट ना बनाया, रिवर का वाटर इधर भी फ्लो हो सकता है, फ्लो होकर क्या हो जाएगा, फ्लड लाइक कंडीशन हो सकता है। तो फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्लड लाइक कंडीशन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट मार्जिनल एम्बैंकमेंट और लीवीज, स्मॉल लीवीज पैरेलल टू द रिवर लेंथ। ठीक है, पैरेलल टू द रिवर लेंथ, दिस इज द मार्जिनल एम्बैंकमेंट। क्लियर है, मार्जिनल एम्बैंकमेंट क्या है? ओके, सो इन डाइवर्शन वर्क जो हमारा कैनाल में वाटर फ्लो हो रहा है, तो जहाँ पे हम लोग डाइवर्शन वर्क बनाते हैं वहां पे अगर हमें नीड्स हो, अगर हमें कुछ ऐसा है कि वाटर हमारे टाउन में या विलेज में इंटर कर सकता है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को मार्जिनल इम्पैक्टमेंट और सिंपली कैन वी कैन सी से लीवेज, इम्पैक्टमेंट और लीवेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। Okay, next river training work used in the diversion work is asperge or griots. So griots, what is griots? What is griots? Griots, or we can say asperge. Okay, so these are the embankment type of structure constructed along the transverse direction of river. ठीक है, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं? These are also embankment type of structure, but हमने मार्जिनल इम्पैक्टमेंट अलोंग द रिवर किया, मतलब पैरेलल टू रिवर, बट ग्रायोन्स और स्पर्स वी कैन कंस्ट्रक्ट अक्रॉस द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ रिवर। ठीक है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ रिवर। सो हियर रिवर फ्लो, दिस इज द रिवर upstream and downstream, this is the direction of river flow where we can construct here small embankment type of structure। ठीक है, this is the river, this is the spurs, this wall is stone pitching, this wall is stone pitching। so हमारा इसका यूज क्या है ग्रायोन्स का? so it protect the bank of the river from the erosion and silting by deflecting the current away from the bank। इधर से अगर वाटर आ रहा है, इधर से अगर वाटर आ रहा है ना, तो वाटर इधर फ्लो कर पाएगा, और यहाँ पे जो स्कोरिंग था नियर द हेड ऑफ द रिवर, यहाँ पे जो स्कोरिंग था, स्कोरिंग का रेट रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वो फ्लो है जो वाटर का, कुछ इस तरह से जाएगा एबव द ग्राउंड। तो इस तरह से फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस पोर्शन पे जो स्कोरिंग होने वाला था या फिर सेल्टिंग होने वाला था, इरोजन एंड सेल्टिंग, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इरोजन और सिल्टिंग यहाँ पे लेस होगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ gyrones we can construct at different condition। so this type of gyrones is called ordinary और normal gyrones। ठीक है, नॉन ऑर्डिनरी और नॉर्मल gyrones। सेकेंड है एक हमारा रिपेलिंग gyrones। ठीक है, रिपेलिंग gyrones। सो रिपेलिंग gyrones किस तरह का होता है? दिस इज द रिवर and repelling gyrones is in this direction, है ना, tilted to
फ्लो डायरेक्शन, ठीक है, tilted to flow direction. Here also stone pitching. ओके, सो वाटर किस तरह से फ्लो होगा? वाटर हमारा कुछ इस तरह से फ्लो होगा, इधर से वाटर इंटर हो रहा है, वाटर इंटर हो रहा है, ये एबव द कायरेंस वाटर का फ्लो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा? इन दिस पोर्शन silting and at this portion scoring, scoring, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ गायरन्स इज attracting gyres, ठीक है, attracting gyres. So this is the repelling, next is the attracting. So attracting gyres किस टाइप का होगा? Attracting gyres. फिर next is the T-shaped gyres and hockey shaped gyres. These are the different types of gyres or spurs constructed according to our problems, according to our river training work, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा डाइवर्शन वर्क का कंपोनेंट है, दैट इज द फिश लैडर. सो नाउ फोकस्ड ऑन फिश लैडर. फिश लैडर क्या है हमारा? फिश लैडर का यूज कहाँ पे किया जाता है? सो नेक्स्ट इज द फिश लैडर. फिश लैडर, ओके. सो फिश लैडर जनरली रिवर आर इनहैबिटेड. रिवर हमारा क्या होता है? इनहैबिटेड होता है बाय सेवरल टाइप्स ऑफ माइग्रेंट फिशेस. माइग्रेंट फिशेस के लिए क्या होता है? इनहैबिटेड होता है. तो उस फिश का लाइफ कहाँ पे, लाइफ साइकिल कहाँ पे चलता है? रिवर में, ठीक है। अगर रिवर में किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उससे जो वहां पे लिविंग है उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. हमने डाइवर्सन हेडवर्क कहाँ पे किया है? डाइवर्सन हेडवर्क हमने एट द हेड ऑफ द रिवर, ठीक है, डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द रिवर, जहाँ पे हमने कैनाल को कंस्ट्रक्ट किया वहां पे हमने डाइवर्सन नेटवर्क बनाया है. सो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? तो जो माइग्रेंट फिशेज हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं. किस तरह से? कि अगर फिशेज अपस्ट्रीम साइड में आ गए तो वो वापस डाउनस्ट्रीम साइड में नहीं जा पाते हैं ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर. तो उस कंडीशन में क्या करना होता है? फिश लैडर कंस्ट्रक्ट करना होता है फॉर द लाइफ ऑफ फिशेज. तो जनरली रिवर आर इनहैबिटेड बाय सेवरल टाइप्स ऑफ माइग्रेंट फिशेज, ठीक है, विच मूव्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ रिवर टू द अनदर पार्ट ऑफ रिवर. एक पार्ट से दूसरे पार्ट में तो फिशेज है जो मूव करते ही रहता है अकॉर्डिंग टू सीजन. अगर बारिश का सीजन है, मानसून का सीजन है, वो वाटर बहुत ही ज्यादा आता है, उस कंडीशन में क्या रहता है? फ्लो हमारा बहुत ही हाई रहता है, ठीक है. So when these fishes move from downstream to upstream side, they have to resist water pressure, due to which they dies over the period. अगर डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम में हमारे फिशेज आ गए, तो अभी अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में अगर जाना चाहे तो वो
जाएंगे, बट आधे फिशेज क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वाटर प्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, वो फिश का जो बॉडी है वो रेजिस्ट नहीं कर पाता है उतना ज्यादा प्रेशर, वाटर का जो प्रेशर आता है। उस कंडीशन में फिशेज क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, एक वे बनाना होता है ताकि जो फिशेज है वो क्या हो सके, इजिली क्रॉस कर सके downstream to upstream side. In order to enable movement of fish, a structure is made termed as fish ladder, which which dispose the energy of the water by provision of baffle wall on it. These ladders are suitable for wear at a small height as in case at large wear. ठीक है, large wear means height greater than 100 meter. It becomes uneconomical. In that case, it is transport mechanically. So, fish ladder as the name, हमें क्या करना है, एक ladder बनाना है for the fish, for the movement of fish. Okay, तो हमारा कुछ इस तरह से होगा, ये हमारा रिवर था, यहाँ पे हमने क्या बनाया, फिश के मूवमेंट के लिए कुछ रास्ते बनाए ताकि यहाँ पे वाटर का तो फ्लो कम हो, बट फिश है जो इजिली मूव कर पाए, फिश है जो इजिली मूव कर पाए। ठीक है, फिश कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन से इधर से फिश इंटर करेगा, फिर इधर, फिर इधर, 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 और फिर ये इस तरह से अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम जा सकते हैं, डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम। ठीक है, कुछ इस तरह से, दिस इज द प्लान, दिस इज द प्लान ऑफ फिश लैडर। ठीक है, तो मेन पर्पस ऑफ फिश लैडर हमारा क्या है, मेन पर्पस ऑफ फिश लैडर इज टू prevent the fish life when he moved downstream to upstream direction. ठीक है, when it moved downstream to upstream direction. Okay, clear है, this is the main purpose of fish ladder, main purpose of fish